اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. ہم جو ٹیرا ہرٹز اینٹینا ڈیزائن کر رہے ہیں اس کی شیپ تقریباً کچھ اس طرح ہوگی. یہ ہمارے پاس لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے. یہ آپ کے پاس پیچ ہے. درمیان میں آپ کے پاس سبسٹریٹ. اس کو ہم ڈائلیکٹرک مٹیریل کہتے ہیں. چونکہ یہ انسولیٹر ہوتا ہے تو اس لیے اس کے اوپر ڈائلیکٹرک لکھا گیا ہے. نیچے اور اوپر یعنی پیچ اور گراؤنڈ یہ دونوں میٹل کے ہوں گے. میٹل آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہو. ڈائلیکٹرک یہ انسولیٹر مٹیریل یہ بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہو. اچھا جی، تو سب سے پہلے گراؤنڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو سی ایس ٹی کی طرف جاتے ہیں. اچھا جی، تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. تو یہاں ماڈلنگ میں یہاں پہ ملٹیپل آپشنز ہیں. تو یہاں پہ جو سیکنڈ ہوم کے بعد جو سیکنڈ آپشن آ رہا ہے ماڈلنگ، اس میں جو کونے میں جو فرسٹ ون ہوگا اس کے اوپر لکھا گیا ہے بریک. اس پہ ڈبل کلک کریں گے. اگر یہ اوپن نہیں ہوتا تو اس کے پہ پریس کر لیں گے. تو اس کو نیم دیتے ہیں. نام ہم کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. چونکہ ہم گراؤنڈ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو گراؤنڈ کو ٹائپ کر لیتے ہیں. اب چونکہ یو ڈائریکشن میں مطلب یہ آپ کے پاس اگر اس کو ہم کنسیڈر کریں تو یہ آپ کے پاس زیرو ہے. زیرو سے لے کے یو کی طرف مطلب یہاں پہ اس کا جو ڈائمینشن ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا. اور اس ٹائپ پہ اس طرف جو ڈائمینشن ہوگا مطلب وہ آپ کے پاس نگیٹیو ہوگا. چونکہ ہم یو مین سے سٹارٹ کریں تو ہم مائنس یو سے سٹارٹ کریں گے. تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یا یہاں بھی ہو سکتا ہے. چلو جی، ہم اس کو مائنس ڈبلیو جی ڈیوائڈ بائی 2 انٹر کر لیتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہوگا وہ آدھا اس سائڈ پہ ہوگا یعنی نیگیٹو سائڈ پہ ہوگا یو کے اور آدھا پازیٹیو سائڈ پہ ہوگا. تو آدھا ہم نگیٹو سائڈ پہ کر رہے ہیں مطلب مائنس ڈبلیو جی یہی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آدھا آپ کے پاس یہ مطلب یو کے نگیٹو ڈائریکشن میں ہوگا اور آدھا آپ کے پاس یو کے پازیٹیو ڈائریکشن میں ہوگا. اچھا، اب جو گراؤنڈ کی جو لینتھ ہوگی اس کو ہم وی سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آدھا جو پلین ہوگا وہ اوپر ہوگا مطلب پلس وی ڈائریکشن میں ہوگا اور آدھا نگیٹیو وی ڈائریکشن میں ہوگا. تو یہاں پہ وی مین ہمارے پاس جو ہے اس پہ ہم مائنس ایل جی ڈیوائڈ بائی 2 انٹر کر لیں گے. تو اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں. سو جو ایل جی ہوگا مطلب جو گراؤنڈ کی جو لینتھ ہوگی ہاف اوپر اور ہاف نیچے ہوگی. اچھا، اب ڈبلیو مین کو میں ڈسٹرب نہیں کر رہا کیونکہ میں جو ڈیزائننگ کروں گا وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر کی طرف جائیں گے یعنی پازیٹیو ڈبلیو کی طرف. تو اس لیے ڈبلیو مین کو میں نے زیرو چھوڑ دیا ہے. اب ہم یہاں پہ ڈبلیو میکس میں ہم کیا انٹر کریں گے ایچ جی. اب مٹیریل کی آپشن کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس پی سی اور ویکیوم ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق مٹیریل کو لوڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایلومینیم یہ آپ کے پاس ایرلون جو آ رہی ہے سپریٹ ہے. پھر اس کے علاوہ کاپر، ٹھیک ہے، کاپر آپٹیکل کاپر انہیل، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گولڈ بھی آپ کے پاس اس میں موجود ہے. چونکہ میں ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا نہیں چاہتا میں کر لیتا ہوں. چلو جی، ایلومینیم کو یا سلور کو سلور کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اچھا جی، تو یہ آپ کے پاس سلور جو گرین کلر میں ہوگا اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. اچھا جی، یہاں پہ سلور کی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ لاسی میٹل ہے یا ایبسولوٹ مطلب لاسی یا جو ریئل میں ہوگا. اگر لاس لیس ہوگا تو یہ آئیڈیل ہوگا. اگر لاسی ہوگا تو یہ
जो रेल में जो प्रॉपर्टी शो करेगा वही यहाँ पे मौजूद होंगे। म्यू आपको पता है परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और EL कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ये आपके पास इसकी 6.301 इंटू 10⁻⁷ है, और थर्मल कंडक्टिविटी है आपके पास 429 वाट पर केल्विन पर मीटर है। ठीक है, तो हम इसको सिल्वर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लोड पे क्लिक कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे आपके पास सिल्वर ऐड हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी मटेरियल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल का नाम और उसकी जो एप्सिलॉन यानी डायरेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी उसको आप एंटर करोगे। कलर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी पिंक, ग्रीन, व्हाटएवर आप सेलेक्ट करते हो उसको ओके कर लोगे, और ये ओके प्रेस करने के बाद ये ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी ये ऐड करना नहीं चाहता तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक PC को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या चलो जी सिल्वर को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। अब ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये यहाँ से हमारे पास ये जो विंडो ओपन हो जाता है, ये हमसे पैरामीटर्स मांग रहे हैं, मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो ग्राउंड होगा उसकी वेट कितनी होगी। तो मैं लेट्स 500 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये रैंडम वैल्यू ये बाद में चेंज हो सकती है। यहाँ पे जो पैरामीटर लिस्ट होगा यहाँ पे अभी अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पैरामीटर लिस्ट में से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी ये चूँकि ग्राउंड की जो लेंथ है वो हमसे मांग रहा है तो हम वो 400 एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अभी यहाँ पे LB नज़र आया होगा। ठीक है, इस विंडो को मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, अब नहीं हो रहा क्योंकि हमसे हाइट मांग रहा है, तो मैं हाइट को 10 एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, हाइट को ऐड किया, यहाँ पे हाइट है, ये इसको मैं भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं 5 करने चाहता हूँ तो 5 को एंटर करूँगा। अब यहाँ पे some variable have been modified, so press home edit parameter update। ठीक है, या F7 मतलब हम होम में जाएंगे, फिर उसके बाद एडिट और फिर पैरामीटर अपडेट में, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम यहाँ पे F7 को एंटर कर लेते हैं। तो F7 को एंटर करने के बाद अब मेरा जो ग्राउंड है, ग्राउंड प्लेन, इसकी मतलब हाइट कम हो गई है। ठीक है, अब ये चूँकि शुरू में ये जो ग्राउंड था ये बड़ा दिखाई दे रहा था, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ स्पेस को दबाया। ठीक है, अब ग्राउंड के ऊपर हम क्या डिज़ाइन करेंगे, एक सबस्ट्रेट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे। चूँकि सबस्ट्रेट या जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा इसकी डायमेंशन ग्राउंड के डायमेंशन की तरह होगी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड का एक कॉपी लेंगे, लेकिन उसकी हाइट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। तो चले जी सबस्ट्रेट बनाते हैं। तो सबस्ट्रेट बनाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मॉडलिंग में दोबारा होगा, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास क्रिएट कर्व पॉलीगॉन या पिक पॉइंट, पिक स्पेस जो लिखा है इस पे क्लिक करूँगा, या इसका जो शॉर्टकट है वो F है। चलो जी हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो F पे मैंने क्लिक किया। F पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा
तो ये पूरा जो ग्राउंड है इसका ये जो पूरा स्पेस है ये सेलेक्ट हो गया है। अब अगर इसको मैं रोटेट करना चाहूँ, अच्छा जी, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये वाला सिरा मेश व्यू को ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आपको साफ दिखाई देगा। ये जो प्लेन है या इसका जो पेज है ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको मैं रोटेट करूं तो ये वाला पेज सेलेक्ट हो गया है। अब इस पेज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सबस्ट्रेट या डाइलेक्ट्रिक को डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन करने के लिए हम मॉडलिंग में आएंगे, चूँकि पेज ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है जिसके ऊपर लिखा गया है एक्सट्रूड और रोटेट, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड का पेज मतलब ये ऑप्शन ओपन हो गया है, तो इसको नाम देते हैं सबस्ट्रेट। अब चूंकि सबस्ट्रेट की लेंथ और वेट ग्राउंड की तरह है, सिर्फ हाइट उससे डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम हाइट HS एंटर कर लेते हैं। अब सबस्ट्रेट का मटेरियल तो हमारे पास सिल्वर नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मटेरियल लोड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो मेटल ना हो, वो आपके पास इंसुलेटर होना चाहिए। ये आपके पास ग्रीन है, ये आपके पास मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम इस पिंक वाले रेड वाले को देखें एल्यूमिना, तो ये आपके पास लॉसी है, ये आपके पास इंसुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर को भी मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एयरलॉन में इंटरेस्टेड हूँ, तो एयरलॉन 300, एयरलॉन 800, एयरलॉन 5, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। एयरलॉन AR600 जो लासी है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद लोड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लोड हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ओके पे प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये न्यू पैरामीटर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमसे सबस्ट्रेट की जो हाइट है वो हमसे मांग रहा है, तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। मैंने 100 एंटर किए, आप 50 पॉइंट्स में भी कोई भी लेट 100.5 ये मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं इसको ओके करूँगा, तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे हमें एडजस्ट नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन ओके करने के बाद अब ये यहाँ पे नज़र आएगा, तो ये आपके पास एडजस्ट मतलब एंटर हो गया है। अच्छा, और साथ में आपके पास जो सबस्ट्रेट है ये भी बन गई है। अब इसको रोटेट करते हैं तो ये आपके पास ग्राउंड, फिर उसके ऊपर सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, अब जो WCSS है ये आपके पास यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये WCSS यहाँ पे है और ये आपके पास सबस्ट्रेट है। अगर इसका दूसरा व्यू देखें दूसरी साइड से, तो ये आपके पास UVW। ठीक है, तो WCSS यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि इसको ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर वाले पेज पे ले आऊँ, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक में आएंगे, पिक में जो पिक स्पेस है इस पे या ऐप पे एंटर करेंगे। चलो जी, मैंने अब पेज पे क्लिक कर दिया। हर टाइम मैं इसको मैनुअली नहीं करूँगा, मैं इसका शॉर्टकट जो है ऐप इसको यूज़ करूँगा।
लेकिन फ़िलहाल अभी पेज पे जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है। ठीक है, अब यहाँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास WCSS है ये अभी ऊपर आने के काबिल हो गया है, लेकिन अभी ये ऊपर नहीं आया। अगर आप इसकी क्रॉस सेक्शन देखें तो ये अभी भी यहाँ पे है, इसको यहाँ हमने लाना है। ठीक है, या दूसरी साइड से अगर देखें तो ये यहाँ अभी नहीं आया, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लाने के लिए यहाँ से align WCSS, ठीक है, align WCSS इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या इसका जो शॉर्टकट W है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलो जी, अभी इस पे क्लिक करते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। दूसरी साइड से देखें तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर पेज डिज़ाइन करना चाहें तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं। पेज आपके पास किस तरह होगा, इस तरह। ठीक है, ये चूँकि टेढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरह डिज़ाइन करूँ कि विड्थ आपके पास यू डायरेक्शन में आए और एल जो लेंथ है आपके पास वो इस तरह है, जिस तरह हमने डिज़ाइन शुरू से किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये आपके पास तकरीबन कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, वापस कर लेते हैं। अब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो पेज को डिज़ाइन करने के लिए अगेन हम CST में आ रहे, मॉडलिंग पे आ रहे, मॉडलिंग में ब्रेक पे क्लिक करेंगे, नहीं ओपन हो रहा तो एस्केप पे इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास बिल्कुल सेंटर है इस WCSS का। अच्छा, पेज को डिज़ाइन कर रहे तो पेज को नाम देते हैं। अच्छा, ये आपके पास बिल्कुल सेंटर है, इस डायरेक्शन में आपके पास विड्थ होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास लेंथ होगा। तो VU डायरेक्शन में आपके पास विड्थ और V डायरेक्शन में लेंथ। अब पेज का जो विड्थ होगा उसको मैं WP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब चूँकि हाफ विड्थ पॉजिटिव V में होगा और हाफ विड्थ नेगेटिव V में होगा, तो इस लिहाज से मैं इसको हाफ कर देता हूँ, हाफ नेगेटिव डायरेक्शन में और हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब लेंथ ऊपर की तरफ होगा तो LP से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। LP चूँकि हाफ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो इस वजह से इसको हाफ कर देता हूँ, Ctrl+C। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो इसी वजह से इसके साथ -LP दे रहा हूँ। ठीक है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास LP/2 होगा। ये देखें, इसके साथ कोई माइनस प्लस वगैरह नहीं है। अच्छा, अब हाइट, पेज की हाइट कितनी होगी। नॉर्मली हम पेज की जो हाइट है उसको ग्राउंड के बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पे HG एंटर कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिल्वर मटेरियल ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे ग्राउंड था, ग्राउंड आपके पास सिल्वर था, तो पेज भी आपके पास सिल्वर होगा। ठीक है, अब इसको ओके कर लेते हैं। अच्छा, अब चूँकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड की जो विड्थ हमने एंटर की थी वो 500 थी, तो उसी के हाफ हम यहाँ पे 250 या 240 ग्राउंड का जो विड्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्राउंड की जो लेंथ थी वो आपके पास 400, तो 400 का हाफ 200 होगा या 190 हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो ग्राउंड का हाफ लेंथ और हाफ विड्थ का आपके पास एक पेज यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं इस विंडो को बड़ा करूँ तो अभी आपके सामने ये नज़र आ जाएगा।
मुझे शुरू में कर देना चाहिए था, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एच जी आपके पास क्या है, ग्राउंड की हाइट है, हाइट ऑफ ग्राउंड है। इसी तरह एच एस हाइट ऑफ सबस्ट्रेट, फिर एल जी लेंथ ऑफ ग्राउंड, इसी तरह एल पी लेंथ ऑफ पेज। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ताकि बाद में याद रहे और आप भूले ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी के सामने भी आप लिख सकते हैं उसी तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हो, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पे नीचे की तरफ वेट लगाता और पीठ लगाता हूँ, तो पीठ को यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब पीठ को डिज़ाइन करने के दो ही तरीके हैं। ठीक है, या तो इस WCSS को इसी जगह पे रहने दें और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वेट को डिज़ाइन करने के लिए एक फार्मूला बनाएं। ठीक है, तो चलो जी, सबसे पहले उसी को ट्राई करते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल चलो जी, हम कोशिश करते हैं कि एक फार्मूला बनाए। अच्छा, तो आपके पास जो फीड होगा उसका जो लेंथ होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इस V वाले पोर्शन में आते हैं, इसका जो मिनिमम पीठ का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो यहाँ से लेके वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तो आपके पास -LG डिवाइड बाई 2 है ना। ठीक है, सो -LG डिवाइड बाई 2 और फिर यहाँ तक होगा। तो यहाँ तो आपके पास क्या है, आपके पास -LP डिवाइड बाई 2। ठीक है, और आपके पास जो पीठ होगा उसकी हाइट तो सेम ही होगी एज लाइक फिश। एच की हाइट हम आपके पास एच जी थी, तो आप यहाँ पे एच जी को एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, वेट है, पीठ की वेट। तो पीठ की वेट आपके पास हाफ पॉजिटिव साइड पे होगी, हाफ नेगेटिव साइड पे। तो हम यहाँ पे WF डिवाइड बाई 2 और साथ में WF डिवाइड बाई 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू करूँ तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, वेट, पीठ की वेट। तो यहाँ पे मैं पीठ की वेट लेट वेट ऑफ पीठ एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये ओके होने के बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये पीठ ओपन हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये बिल्कुल यहाँ पे पीठ बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे WF ये देख के आपके पास वेट ऑफ फीट ये भी ओपन हो गया है। ठीक है, अब अगर हम इसको रोटेट करें, तो अगर जूम करें तो ये बिल्कुल उसी मोटाई का आपके पास पीठ बन गया है। ठीक है, अब ये तरीका भी है, साथ में अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आप इस WCSS को यहाँ पे ले आए, ठीक है, और यहाँ लाने के बाद अगर आप इस पीठ को डिज़ाइन करना चाहें या यहाँ लाने के बाद यहाँ लाते हो और यहाँ से लेके यहाँ तक
मतलब आप जिस तरीके से भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फार्मूले को चेंज करोगे। ठीक है जी, मतलब जो भी तरीके ऑप्शन हैं उनको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे WCSS पे क्लिक करेंगे। WCSS पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म WCSS। ठीक है, तो WCSS मतलब यहाँ पे मूले का है। अगर रोटेट है तो रोटेट, हम चूँकि रोटेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रोटेट में इंटरेस्टेड नहीं है तो मूव को ही ऑन रहने देते हैं। ठीक है, अब चूँकि मैं इस WCSS को मैनुअली भी रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन ज़रा ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0.0 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे हो रहा था, मैं चाह रहा था कि इसको -v डायरेक्शन में ले जाऊँ, तो ये आपके पास v है, dv, जो dv को मतलब जो v डायरेक्शन में जो ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये जो मूव होगा, वो आपके पास ये dv रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ पे सेट करें, WCSS को यहाँ पे सेट करें, तो 0 से लेके यहाँ तक ये आपके पास -LV/2 बनेगा। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि नहीं इसको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ ले आओ, तो फिर आप इस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे LGB सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा इसको प्रीव्यू करें तो आप देखिए ये आपके पास नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे फीड है, इस फीड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि नए तरीके से फीड को बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ बाई प्रेसिंग डिलीट। सो डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस शेप? यस, यस पे क्लिक करेंगे, अब ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के बाद ये आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ से फीड गायब हो गया है। अगेन दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ओके, सो अब जल्दी करेंगे। ठीक है, तो फीड की जो वेट होगी वो आपके पास -WF/2 नेगेटिव, हाफ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब चूँकि हम +v डायरेक्शन में जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब कितना एंटर करेंगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता कि यहाँ से लेके कितना लेंथ होगा। ठीक है, तो उस लेंथ को लेंथ मतलब ये हमें इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं। एक तरीका तो ये है कि मतलब जो लेंथ है ग्राउंड का वो आपके पास है 500। ठीक है, सॉरी LG जो है वो 400 है, और जो LF है LP है वो आपके पास मतलब 190 है। तो 400 - 190 करेंगे तो ये आपके पास 210 बनेगा। 210 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास ये 105 बनेगा। ठीक है, 105, और यहाँ पे जो हाइट होगा HG। अगर इसको मैं प्रीव्यू करूँ तो ये आपके पास 105 बनता है। लेकिन ये अगर हम लेंथ को चेंज करेंगे ग्राउंड के या उसके पेज के, तो फिर ये मसला होगा, यहाँ पे ये सही तरीके से फीड नहीं बनेगा। तो फीड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, LG लिख देते हैं। ठीक है, उसको हाफ कर देते हैं बाई एंटरिंग LG डिवाइड बाई 2। अब इसके हाफ से हम क्या माइनस करेंगे, LP का हाफ, यानी जो फीड का यानी जो पेज का जो लेंथ होगा उसको हाफ कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इस फार्मूले की मदद से अब ये हमें ये फैसिलिटी है कि ये जो लेंथ है फीड का वो इसी के डायमेंशन के चेंज होने के साथ ये भी यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, तो प्रीव्यू। ठीक है, या चलो जी हम 10 इसको अभी नहीं एंटर करते बल्कि इसको Ctrl+C। ठीक है,
और साथ में ये जो 105 था उसी को ट्राई करते हैं, प्रीव्यू भी करते हैं और ओके भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास ओके हो गया है। लेकिन अगर मैं वेट को चेंज करूँ, इसको सॉरी लेंथ को चेंज करूँ, ग्राउंड की जो लेंथ है इसको 500 कर दूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया और F7 तो देखिए ये आपके पास ये बहुत बड़ा गैप बन गया है। ठीक है, लेकिन अगर इस गैप को मैं ख़त्म करना चाहूँ तो जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वही फार्मूला हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो पीट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में ब्रेक को सेलेक्ट करेंगे और इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम एंटर करेंगे, यानी प्रिंट मैंने तो यहाँ पे काफ़ी पेस्ट किया चूँकि शुरू में बनाया था, अभी आप लोग इसको यहाँ पे एंटर करोगे। LG मतलब हाफ आप ग्राउंड माइनस LP डिवाइड बाई 2, मतलब पेज का जो लेंथ होगा उसका हाँ। ठीक है, जैसे मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से बढ़ गया है। ठीक है, ओके करने के बाद ठीक है, अब अगर इसको मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पे कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके पास ये गेप ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसको वापस 400 पे ला रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा स्टेप, इसके बाद जो स्टेप करेंगे वो स्पीड को इस पेज के साथ ऐड करेंगे। तो पेज, ठीक है, फिर पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस लिखा है, साथ में बुलियन लिखा है। तो इसमें आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरेक्शन, इंटरसेक्शन ये सब कुछ आप कर सकते हो। क्योंकि मैं पेज के साथ पीट को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पीट होगा इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ से जो लाइन था वो ख़त्म हो गया। ये प्रेजेंट कर रहा है कि अब ये सारा पोर्शन जो है पेज का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पेज ही नज़र आएगा। ग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड ये आपके पास सबस्ट्रेट, ठीक है, और उसके ऊपर पेज, तो ये आपके पास पेज बन रहा है। ठीक है, तो अच्छा, आई थिंक वीडियो काफ़ी बढ़ गई है, लेंथी हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पीट असाइन करना है, तो पीट को अगले वीडियो में असाइन करते हैं, वेव गाइड पीट को असाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।